Welcome back to online class. Let's continue that lesson number 2 is matter around us pure. Today we discussed about that what is suspension and its properties, and what is colloidal solution and their properties, and we discussed what is immiscible liquids, and how we separate that immiscible liquids. Okay. Solubility. Solubility is the amount of solute in a saturated solution at a given temperature. Solubility का definition क्या है देखो. So the amount of solute in a saturated solution at a given temperature. या हम दूसरा word से बोल सकते हैं कि maximum capacity to dissolve a solute in a solutions at a given temperature is called solubility. यानी ज़्यादा कैपेसिटी होता है, कितना कैपेसिटी, जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगा जो डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्यूट को एक सोल्यूशन के अंदर गिवन टेम्परेचर को, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. डिफरेंट सॉल्वेंट्स कैन डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अलग अलग सॉल्वेंट से डिज़ोल्व होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है. ओके, दिस मीन्स डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव ए डिफरेंट सॉल्युबिलिटी. That is, solubility increases with increasing in temperature. Solubility increase होता है with increasing in temperatures. Okay, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा स्पेस और भी मिलता है, इसलिए solubility और भी ज़्यादा increase होता जाएगा. Next is concentration. Concentration is the amount of solute present in a given amount of a solvent or solution. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन. तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है फार्मूला. ओके, Thus concentration is the ratio of that amount of solute and amount of solvent. इसीलिए रेशियो हो जाता है amount of solute upon amount of solvent और amount of solution. The concentrations can be expressed in the mass percentage or volume percentage of a solution. Mass percentage में बता सकते हैं concentration को, या volume percentage में भी बता सकते हैं solution, that is concentration को. देखो mass percentage में कैसे दिखाई देगा solutions को. Concentration is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. सो देखो मास ऑफ, कितना मास रहेगा सॉल्यूट का, डिवाइडेड करेंगे मास ऑफ सोल्यूशन को, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और इसको कॉन्सेंट्रेशन बाई मास परसेंटेज बोलते हैं. नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन. सो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ दैट कितना होता है वॉल्यूम में सॉल्यूट का, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ओके, दिस मीन्स दैट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम परसेंटेज. इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, दिस इज दैट हाउ वी फाइंड आउट दैट concentration of mass percentage of a solution and concentration of volume percentage of a solution. Okay, now we discussed suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspensions are visible to the naked eye. So suspension का देखना definitions क्या है. ये heterogeneous mixture है, आपको बता दिया पहले से क्या होता है heterogeneous mixture है. So which soluble particles do not dissolve. कोई soluble particles होता है वो solute particles so dissolved नहीं होता है, but वो suspended होता है throughout the bulk of the medium, जब तक medium वो suspended रहता है. फिर that is particles of a suspended are visible to a naked eye. particles हमें naked eye से दिखाई देता है, लेकिन solution के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन suspension के अंदर हमें particles naked eye से दिखाई देता है. So now properties of a suspension discuss. Suspensions is an heterogeneous mixture. First point है, आपको पता है heterogeneous mixture है ये. The particles of a suspension can be seen by naked eye. particles को हम naked eye से देख सकते हैं. The particles of a suspension scattered a beam of light passing through it and make its path visible. तो टिंडॉल इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब है, यानी टिंडॉल इफेक्ट यानी उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर हम लाइट पास करेंगे तो स्कैटर्ड हो जाएगा. सो मीडियम के अंदर तो विजिबल लाइट दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ए टिंडॉल इफेक्ट बोलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट.
that is undisturbed. This is the suspensions is unstable, they can be separated from the mixtures by the process of filtration. इसको ये अगर हम बिना डिस्टर्ब करके कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो द पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन, सेटल्ड होता है अनडिस्टर्ब करेंगे तो उसको हम ये अनस्टेबल रहता है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर्स को बाय द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके. Colloidal solutions. A colloidal solution, occasionally identified as a colloidal suspensions, so is a mixture in which a substance is regularly suspended in a fluid. A colloid is a minutely small material that is regularly spread out all throughout and through another substances. So एक colloidal solution है, आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाते हैं कि ये colloidal solution है बोल के, क्योंकि सस्पेंशंस होता नहीं, रेयरली होता है मिक्सचर्स के अंदर ये. और ये कोलाइडल सॉल्यूशन माइन्यूटली स्मॉल होता है मटेरियल्स, यानी बहुत थोड़ा छोटा होता है मटेरियल से. सो रेगुलरली स्प्रेड आउट ऑल थ्रू अनदर सब्सटेंस, रेगुलरली स्प्रेड होते रहता है थ्रू आउट दैट अनदर सब्सटेंसेस के साथ. ओके. सो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा आपको. से कोलाइडल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. ये बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, हम इसको नेकेड आइज से इजीली देख नहीं सकते हैं. फिर colloidals are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it a path of visible. बस इससे ये पता कर सकते हैं कि ये कोलाइडल है, जब हम लाइट पास करेंगे तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, फिर तो इससे पता चल जाएगा कि ये कोलाइडल सोल्यूशन है बोल के. फिर ओके. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज़ ए कोलाइडल क्वाइट स्टेबल. ये हम अगर इसको 5 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए रख देंगे विदाउट डिस्टर्बेंस, सो ये सेटल डाउन नहीं होगा नीचे. ओके. सो एक स्टेबल रहेगा. फिर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू. फिर ओके. The component of colloidal solutions are the dispersed phase and the dispersion medium. Components कौन से है colloidal solution का? Dispersed phase and dispersed medium होता है. The solute like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed फेस इज सस्पेंडेड इज़ नोन एज ए डिस्पर्शन. ये डेफिनेशन है डिस्पर्स फेस का, और फॉर्मेशन किस तरह होता है, और डिस्पर्शन मीडियम किसका डेफिनेशंस बताया गया है. फिर ओके. सो दैट कोलाइडल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट. क्लासीफाई किस तरह कर दें तो हम अभी स्टेट का डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट्स के अकॉर्डिंग दैट सॉलिड है या गैस, लिक्विड है और गैसेस है, ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड देन डिस्पर्शन फेस. यानी डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड रहेगा या डिस्पर्शन लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, इस तरह से हाँ रहेगा वो, दैट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशंस में. सो हम डिस्कस करेंगे अभी उस टेबल को देख के. फिर ओके. तो देखो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स का देखो, डिस्पर्शन फेज है, डिस्पर्शन मीडियम है और टाइप है और एग्जांपल्स है देखो टेबल्स के अंदर. सो डिस्पर्शन फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है और टाइप क्या होता है, एरोसॉल. ये सारा याद रखना है. एग्जांपल फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है. सो सॉलिड है और डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, वो भी टाइप कौन सा रहेगा, एरोसॉल होगा. जैसे एग्जांपल स्मोक एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट शेप. ये नेक्स्ट है देखो, डिस्पर्शन फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है. जस्ट टाइप कौन सा होगा, फोम होगा, दैट इज़ शेविंग क्रीम है. इस तरह से लिक्विड होगा दोनों भी, तो एमल्शंस होता है, दैट इज़ मिल्क है, फेस क्रीम है, इस तरह से. और सॉलिड लिक्विड होगा तो सॉल होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है, ये है एग्जांपल्स है इसका. और गैस और सॉलिड होगा, गैस डिस्पर्शन फेज है, डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा होगा, दैट इज़ सॉलिड होगा तो फोम होगा, दैट इज़ एग्जांपल है फोम, रबर एंड देन स्पॉन्ज. ओके. प्यूमियस ये सारा है. लिक्विड और सॉलिड होगा तो जेल होगा, दैट इज़ जेली, चीज़, बटर. और सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल होगा, दैट इज़ कलर्ड जेम स्टोन्स, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा. ओके. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है, जो उसको सेपरेट कैसे किया जाता है. फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन है. इन दिस मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन दैट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर यूज्ड टू सेपरेट लाइटर एंड हेवियर
components of mixtures of two immiscible liquids. This process is used to separate a very small solids particles from a liquid mixtures. So इस मेथड में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होता है तो सेपरेट करने के लिए लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर्स के अंदर रहता है. सो वो टू इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर देता है फिर. ओके, इमिसिबल मीन्स जो दोनों मिक्स नहीं हो पाता, अलग अलग रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स होता है. इस प्रोसेस में यूज़ होता है जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होता है वेरी स्मॉल होता है उसको लिक्विड से अलग करने के लिए फिर. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा. मिल्क इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ फैट है, वाटर है एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशंस मोस्ट ऑफ द फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क. जो मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं मलाई है तो दैट इज़ फैट से क्रीम बोलते हैं, तो वो फैट से वो मिल्क के अंदर होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता. व्हेन वी दैट्स बॉयल द मिल्क वो आपको ऊपर दिखाई देगा, दैट इज़ क्रीम दिखाई देगा फिर. ओके, इन मिल्क फैट इज सस्पेंडेड थ्रू आउट दैट मिल्क विच इज़ सेपरेटेड आउट यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. इस क्रीम को अलग करने के लिए हम मिल्क से उस क्रीम को अलग करने के लिए तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को अपनाते हैं फिर. ओके, सो व्हेन मिल्क इज churned rapidly, water which is heavier than fat migrates away from the center of a centrifuge, while fat is forced towards the bottom which is drained out. So इस तरह से देखो हम चर्निंग करते हैं तो भी इतने देखो जो वाटर है वो मिल्क वाटर है जो वो नीचे चले जाएगा और जो फैट है वो ऊपर आ जाएगा. सो दैट इज़ सेंट्रीफ्यूग होता है जो, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होता है जो इस तरीके से फिर. ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या क्या है, कहाँ पे अप्लाई होता है ये प्रोसेस. इन पैथोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन, यानी पैथोलॉजी यानी ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन. इन सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क, मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है जो उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ में आता है. नेक्स्ट है इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज दैट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स वेट होता है वॉशिंग मशीन को, उसको स्क्वीज़ करने के लिए ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई होता है फिर. ओके, दिस इज़ अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन. Decantation is used to separate the components from a mixtures of two immiscible liquids, such as mixtures of oil and water. In a mixture of two immiscible liquids, lighter one and the heavier one from separated layer. So the lighter one can be decanted after the settlement of mixture carefully in other कंटेनर. सो ये डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है केरोसिन और वाटर ले सकते हैं हम, ऑयल और वाटर ले सकते हैं. सो हम इसमें सेपरेटेड फनल में डालेंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेयर्स दिखाई देता है. वाटर अलग दिखाई देगा, ऑयल अलग दिखाई देगा. ऑयल अपर सरफेस में होता है, वाटर अप लोअर सरफेस में होता है. तो हम इस मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं तो इमिसिबल लिक्विड्स को. जो हम इसको लाइटर वन जो रहता है, जो ऑयल जो ऊपर की तरफ होता है और जो हेवियर होता है जो वाटर वो नीचे की लेयर बना हुआ रहता है, तो इसको हम डिकेंटेशन प्रोसेस से थ्रू अलग कर सकते हैं फिर. सो इन द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन सम ऑफ द हेवियर लिक्विड्स आल्सो poured out with a lighter one. Therefore, components from a mixture of two immiscible liquids can be separated more easily and एक्यूरेटली यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल. हम इसको सेपरेट करने के लिए ऑयल और वाटर को जो अलग अलग लेयर दिखाई देगा उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं जो सेपरेटिंग फनल होगा. ओके, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द सेपरेटिंग फनल. उसको कैसे अलग किया जा सकता है. ए सेपरेटिंग फनल इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास विथ ए स्टॉप कॉक विथ ड्रेन pipe at the bottom. The heavier liquids which is settled at the bottom is drained out from the mixtures of two immiscible liquids by opening of stop cock from a separating funnel. ये देखो डायग्राम में इजीली दिखाई दे रहा है. सबसे पहले हम पोर करेंगे ये जो ऑयल और वाटर को मिक्सचर्स है जो इमिसिबल लिक्विड्स को, तो वो जैसे अंदर जाएगा ये जो वो सेपरेटिंग फनल के अंदर जाएगा तो लेयर्स बनेगा अलग अलग. ऑयल का अपर सरफेस है, वाटर का लोअर नीचे सरफेस रहेगा. फिर
सो ये कॉक होता है, टैप होता है जो, वो टैप को ऑन करेंगे धीरे धीरे तो वाटर का लेयर को हम एक बीकर में सेपरेट कर लेंगे और ऑयल को अलग से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिर। ओके, तो यहाँ तक रहने दो। नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल टेक केयर योर सेल्फ।